Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. In class 12th we were doing the functions, one function, onto function, bijective function. Then we did few questions based on those types. Then we did composite of two functions. Now today, very important topic, the invertible functions we will do. Very important topic from examination point of view. Invertible functions, that means inverse of a function. Inverse of a function. So first of all, invertible function means which function are invertible and which are not. Which functions are invertible and which are not. So here I have written that function f is invertible. Any function f from a set to other set is invertible if f is bijective function. Very important thing. F is bijective function. F should be bijective. F should be bijective. Bijective means the function should be 1 as well as onto. The function is invertible if f is bijective function. That is what? That is this. A function f from a set x to a set y. Non-empty set x, non-empty set y. F from x to y is a bijective function. Suppose I am taking a function f from x to y is a bijective function with image of x is y via the function f. That means image of function x is y via the function f. Where this x is coming, f is from x to y, this is x, this is y. X is in x and y is in y, and x की image y है via function f. This is showing this, that the element x is having image y via the function f. X is coming from x and y is coming from y. Function x to y. Then f inverse from its reverse y to x given by f inverse y equals to x is called inverse of f. और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा when this function f is bijective function. Bijective function. If f x to y is a bijective function, only then we can say that inverse will exist, and that inverse of that function will be f inverse will be from reverse. That means y to x. F inverse will be from y to x given by सीधे अगर if this function will be invertible तो ये अपने आप f यहाँ पहुंच के f inverse हो जाएगा. Simply, that means सिंपल सी बात ये है कि इस तरीके से ये फंक्शन बन रहा है. This is a function from x to y. जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा like this is f इनवर्स. जब f ऐसे जा रहा है, x की इमेज y है, तो f इनवर्स में y की इमेज x हो जाएगी. अभी फिलहाल थ्रू फंक्शन f y की प्री इमेज x है, x की इमेज y है. When it will become f inverse, that means y की इमेज via f inverse will be x and x की प्री इमेज via f inverse will be y. And that will be possible only when the function is 1 as well as onto. Why? Because suppose this is x and this is y, then we are having here a b c d 1 2 3 4. 1 is going to b, 2 is going to this, 3 is going to this, 4 is going to this, like this. Suppose this, if this is there, this function is not onto. This function is not onto. ठीक है? If I will reverse this function, तो यहाँ पर a b c d आ जाएगा, और जैसी मैपिंग जाएगी ये d रह जाएगा. d will रह जाएगा. That means this is not a function. This is not a function. और सिंपल सी बात यहाँ पर है कि अब ये जो है इसको यहाँ से हटा के मैंने यहाँ कर दिया. Now what is this? सबकी इमेज है, सबकी प्री इमेज है. This function is 1 as well as onto. So we can say that if this is a function from x to y, तो f inverse y से x में एग्जिस्ट कर जाए. क्यों? Because the function is 1 as well as onto. और रिवर्स भी कर लो. अगर x से y में ही मान लो यहाँ पर we are saying that ये यहाँ पर गया और मान लो ये इस तरीके से यहाँ पर गया हुआ था, सपोज करो. अगर ये ऐसा है, इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ से जो b एलिमेंट होगा a b वाला, ये b जो है यहाँ से 2 के पास जाएगा, 1 और 2 के पास रिवर्स करने पर, which is also saying that this is not a function also. So the function will be invertible only when the function is 1 as well as onto. That is, function should be bijective. If a function is bijective, then the function is invertible. x की इमेज y है, x belongs to x है, y belongs to y है, तो अपने आप इन्वर्टिबल मतलब फंक्शन रिवर्स हो गया, बिल्कुल रिवर्स. इस केस में जो फंक्शन ऐसा था वो इन्वर्टिबल होने के बाद ऐसे हो गया. कैसे हो गया? यहाँ y आ गया,
यहाँ x आ गया, here एलिमेंट y, here एलिमेंट x, मैपिंग जाएगी f इनवर्स की, लाइक दिस ये फंक्शन जो ऐसा था उसका इनवर्स ये हो गया, उसका इनवर्स ये हो गया, साफ साफ लिखा है विद fx इक्वल्स टू y, देन f इनवर्स y, f इनवर्स, अब इनपुट इसका ये बन गया जो इसकी रेंज थी वो इसका इनपुट बन गया इक्वल्स टू x इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। यहां पे मैंने लिखा भी इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, द डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन ऑफ f इनवर्स, obviously this is कोडोमेन, पता है मुझे कि ये y कोडोमेन है, बट क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो ये रेंज भी बनेगा भाई, जब ये फंक्शन 1 1 बाइजेक्टिव है, ऑनटो है, तो ऑब्वियसली कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज। सो आई एम सेइंग दैट डोमेन ऑफ f इनवर्स इज y which was range of f, तो डोमेन ऑफ f इनवर्स इज रेंज ऑफ f and range of f inverse will be domain of f, domain of f inverse is range of f and range of f inverse is domain of f. So the main thing is just you have to understand that a function will be invertible if that function is 1 1 as well as onto bijective function, and if fx equals to y is there then we can write, if the function is invertible, f वहां जाएगा तो it will become f inverse y equals to x, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है this, but it should be invertible, it should be 1 1 onto, only then we can write this, if that function is invertible, ठीक है। नाउ अब एक बात और नीचे लिखी हुई है, उसको भी पहले पढ़ते हैं, क्या है, पहले ये वाला रब कर देते हैं, दिस इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन, लेट मी रब दिस थिंग, अब एक डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है भाई, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है जो आप समझा रहे हैं, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की, जो आप समझा रहे हैं तो वो भी सुन लो क्या होती है। वो डेफिनेशन ये है कि ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, कोई भी फंक्शन x से y में इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करे g, एक फंक्शन g एग्जिस्ट करे उसके रिवर्स में y से x में, इफ fx फ्रॉम x टू y तो g एग्जिस्ट करना चाहिए फ्रॉम y टू x, such that when I will find the composition of these two functions, that means when I will find the fog and gof, then for gof as well as fog should be, what is this I? This I is identity function. Identity function क्या होता है पता है, 11th क्लास में किया था, identity function is the function, suppose I am saying that I is identity function if I from a set to itself, I from a set to itself such that its input and output are same, this is called identity function which we did in class 11th, y equal to x, ग्राफ ये बनता था इसका, passing through origin this, तो अगर gof and fog मतलब ये कह रहा है a function f will be invertible if there exists a function g such that when I am finding the composition of these two functions fog and gof that should be identity function। अब यहाँ पर ix का मतलब क्या है, ix का मतलब क्या है, this gof, ये जो gof होगा, this gof, ix का मतलब क्या होगा, gof will be from x to x, gof will be एक फंक्शन होगा, तो gof होगा तो सही आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन वो x से x में होगा, क्यों होगा x से x में, क्योंकि gof का डोमेन क्या होगा, जो f का डोमेन होगा, और f का डोमेन क्या है x, तो गोफ x x में होगा। ऐसी फॉग का डोमेन क्या होगा, जो g का डोमेन होगा, और g का डोमेन क्या है, y है, तो फॉग y से y होगा, लेकिन होंगे दोनों आइडेंटिटी फंक्शन, दैट मींस जो इनपुट लूंगा वही आउटपुट आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में दिस डेफिनेशन इज गिवन, एंड दिस g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, and this g is called the inverse of f, that means यहां पर जो ये f इनवर्स लिखा हुआ है यही g है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, बात दोनों में एक ही है, अगर अब मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कि ये इससे ये कैसे बना है, भी प्रूव भी कर देंगे इसको। g is called inverse of f, this g is called inverse of f written as g, this g is equal to f inverse, इसका इनवर्स क्या, ये g है। कैसे, देखो
गॉफ की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन होगा, देखो चेक कर लो, गॉफ एक्स निकालते हैं, मैं निकाल रहा हूँ गॉफ एक्स, तो जब गॉफ मुझे प्रूव करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, चेक करो गॉफ एक्स निकाला तो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा इफ द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो मैंने पहले कह दिया ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू y है और एफ इनवर्स y की वैल्यू x है। अगर एफ इनवर्स को मैं g नाम दे देता हूँ, इफ आई एम गिविंग द फंक्शन एफ इनवर्स एज g, तो g y विल बी x। तो यहाँ देखो गॉफ x निकाला तो वो बन गया g ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज y, तो यहाँ आ गया जी वाई। नाउ व्हाट इज जी वाई, व्हाट इज जी? जी वाई, जी क्या है? ये है जी, मतलब जी ये है, तो व्हाट इज जी वाई? जी वाई इज एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ गया। दैट मीन्स गॉफ एक्स, जो इनपुट लिया वही आउटपुट आ गया, दैट मीन्स गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ चेक करो फॉग वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ जी वाई। व्हाट इज जी वाई? जी वाई, जी वाई मतलब जी एफ इनवर्स, एफ इनवर्स जी वाई, दिस इज जी वाई बिकॉज एफ इनवर्स इज जी, so gy will be equal to x, so this is fx, and what is fx? Fx is y. I am taking this condition because the function is invertible. If the function is invertible, then all these conditions will be holding, all these conditions will hold. So I have proved that Goff will be identity function and Fogg will be identity function. So these two definitions are there. The questions can be done from both either by this method or by this method. I will solve one question by these two methods, rest you can solve, but I used to solve the question by this method only. I will prove the function that this is 1 1, this is onto, that means it is bijective, so it is invertible, then I will find its inverse. But one question I will do by both these methods so that you can understand both the methods, how to do the questions. So this was the definition of invertible functions. When the function is invertible, the main condition is that the function should be function is invertible if it is 1 1 as well as onto, and the second definition, f is invertible if there exists a function g from its reverse sets such that Fogg and Goff are identity functions. Let's do one question, one example for this. One example, I am taking very simple example. Big questions, complicated questions we'll do in next class. Let us take an example just to show the invertible functions. That is, I am taking an example. Take a function from real to real such that fx is a linear function 4x plus 3. This is a question. I have to prove that it is invertible, then finding f inverse, then finding f inverse. Now, first of all, I will prove that this is 1 1. For 1 1, what we need to do? Let x1 comma x2 belonging to the set domain that is R such that fx1 is equals to fx2. This implies fx1 will be 4x1 plus 3 equals to fx2 will be 4x2 plus 3. 3 and 3 gets cancelled out. 4x1 equals to 4x2. 4 and 4 gets cancelled out, implies x1 equals to x2. So this is 1 1. So I can say that f is 1 1. F is 1 1 function. Now let us do the onto part. Onto what we used to do? Let y belonging to the codomain that is R such that fx equals to y. fx equals to y. यही करते थे और प्रूव करेंगे ये जो x है ये डोमेन से आ रहा है, y की प्री इमेज x है और वो जो x है वो डोमेन से आ रही है, ये प्रूव करेंगे R से आ रही है. Now fx equals to y implies what is fx 4x plus 3. 4x plus 3 is equals to y. This implies x equals to y minus 3 by 4. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि I will put any y, I will get x from real. I will put any y 1 2 3 4 5 7 minus 1 minus 7 0 कुछ भी put करेंगे, I will get real x here. So I have proved that here x is coming from real number. So we can say that the function is onto as well. Here x is defined for all y. Here x is defined for all y. That means we have proved for each y belonging to the codomain we have x in domain, x in R, so that x की image y है. इसका मतलब function is onto. So we can say that f is bijective. Therefore f from R to R is f is invertible. This f is invertible. Invertible. अब वो कहता है hence find f inverse. f inverse पे निकालना है.
अगर मैंने ऑन्टो को एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करके प्रूव किया होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करते हैं, अभी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है, फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, ज्यादातर ऑन्टो को ऐसे प्रूव करते हैं, कभी कभी ऑन्टो को कुछ और भी करते हैं, लेकिन अगर ऑन्टो को मैंने ऐसे प्रूव किया होगा कि भाई y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया होगा, तो जो ये चीज मुझे मिलेगी, दिस थिंग, ये चीज जो मिलेगी वो फंक्शन का इनवर्स होगी। कैसे? f इज इनवर्टिबल विद f इनवर्स, f इनवर्स को नाम देना है तो दे दो, नहीं देना तो छोड़ दो। f इनवर्स को मैं नाम दे दिया g, विद f इनवर्स इक्वल्स टू g, नाम दे दिया g। कहां से कहां तक? रिवर्स करो, r से r है तो रिवर्स करने पर ये r से r ही रहेगा, सच दैट gy, इसको फंक्शन ऑफ y कर दिया, gy क्या बनेगा? जो यहां पर आया है, जो भी तुमने ऑन्टो स्टेप में, जब भी f इनवर्स निकालने का मेथड यही है, fx को y पुट कर देंगे, पहले y इन टर्म्स ऑफ x होगा, हर क्वेश्चन में जब भी f इनवर्स निकालना होगा, कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है फाइंड इफ f इनवर्स, तो ये सब कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ f इनवर्स निकालना है। तो क्या करते हैं उसमें, fx को y पुट कर देंगे, उसमें y इन टर्म्स ऑफ x होगा, तुम्हें x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो ये आ गया y माइनस 3/4, तो यही इसका इनवर्स है, y माइनस 3/4। अब यहां पर प्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फाइंड f इनवर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, फाइंड f इनवर्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। f इनवर्स क्या है? f इनवर्स ये है पूरा f इनवर्स, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, f इनवर्स r से r, f इनवर्स y इज दिस, मान लो ये नहीं करना, छोड़ दो, f इनवर्स कर दो, f इनवर्स r से r सच दैट f इनवर्स y इज दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली कह देता है फाइंड f इनवर्स x, कह देता है, कह दिया तो कहने दो, हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, हम अब इसको लिखने का तरीका क्या, f इनवर्स x कह दिया उसने, जब प्रिस्क्राइब कर दिया, आई विल राइट दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू, जहां पर y है उसको x कर दो, x माइनस 3/4, ये इसका आंसर है, f इनवर्स फ्रॉम रियल टू रियल, वो कहने की बात है। अगर कह रहा है हेंस फाइंड f इनवर्स, जब f इनवर्स कहा है तो तुम वेरिएबल कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन f इनवर्स x जब कह दिया या f इनवर्स a कह दिया, तो तुम्हें उसको उसी वेरिएबल के टर्म में फंक्शन को लिखना है। ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, f इनवर्स तो वही निकल गया। ये तो था बेटा एक डेफिनेशन वाले मेथड से, वन ऑटो से। अब मुझे मान लो इसी क्वेश्चन को मुझे करना है फॉग एंड गॉफ वाले मेथड से, तो क्या करते हैं वो भी देख लो, सिर्फ यही चीज करेंगे यार, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। नाउ व्हाट विल डू, सीधे करेंगे पुट fx इक्वल टू y, और लिखना नहीं है फॉर फाइंडिंग f इनवर्स, यहां पर लिखना है सीधे पुट fx इक्वल टू y। सेकंड मेथड बता रहा हूं, एनसीईआरटी वाला मेथड, fx को y पुट करने के बाद हम बोलेंगे 4x + 3 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y माइनस 3/4। अब यहां लिखेंगे, हम यहां पर f इनवर्स कुछ नहीं लिखेंगे, ये f इनवर्स नहीं लिखेंगे, अभी मुझे नहीं पता। नाउ आई विल फ्रेम अ फंक्शन g फ्रॉम रिवर्स ऑफ सेट, रिवर्स ऑफ दिस सेट्स, g फ्रॉम r to r, आई विल फ्रेम अ फंक्शन सच दैट g, दिस फंक्शन जो है वेरिएबल y है, तो gy इक्वल टू y माइनस 3/4। मैं इसको एक फंक्शन बोल रहा हूं, मैं इसको फिलहाल अभी f इनवर्स नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज f इनवर्स, क्योंकि मैंने प्रूव थोड़ी किया है अभी, मैंने सिर्फ एक फंक्शन जनरेट किया है, इसका एक फंक्शन निकाला है, ये एक फंक्शन है, ये f इनवर्स नहीं बोल रहा अभी मैं इसको, f इनवर्स तब बोलूंगा जब मैं फॉग एंड गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दूंगा, तब बोलूंगा। तो g r से r gy हो गया y माइनस 3/4। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे फॉग, तो पहले मैं निकालता हूं फॉग, व्हेन आई विल फाइंड फॉग, तो g बाद वाला फंक्शन g है, g का यहाँ पे डोमेन है y, तो आई विल फाइंड फॉग y, तो व्हाट इज फॉग y, फॉग y इज f ऑफ gy, f as it is, what is gy is y minus 3/4, y minus 3/4 gy। now assume this in mind a, f a, तो देखो मुझे चाहिए f y minus 3/4 चाहिए, f x क्या है 4x plus 3, तो f a क्या होगा 4a plus 3, अगर ये मान लो a है सपोज करो, तो हो जाएगा f a 4a plus 3, अगर ये a है, समझ यही लिख दो, ये क्या हो जाएगा f a क्या हो जाएगा 4, f a यहां से क्या होगा 4a plus 3, f a क्या होगा 4a plus 3 हो जाएगा भाई, f x है 4x plus 3, तो f ये a है मान लो, अगर बड़ी चीजों तो ऐसे करते हैं 4a plus 3, अब ये a है क्या, ये a ये पूरा है, तो ये हो जाएगा 4 into y minus 3/4, a की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3। अब इसको रब कर दो, ये मुझे करना था माइंड में, ये मैंने बताया सिर्फ समझाने के लिए,
अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो. f समथिंग, वो समथिंग कहा जाएगा जैसे f समथिंग इज 4 into something plus 3, तो वो जो समथिंग यहां पर आ रहा है दैट समथिंग विल बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ x. ये आ गया. इसको सिंप्लीफाई करो. 4 and 4 कैंसिल, y minus 3 plus 3, 3 and 3. fog y is y implies fog is identity function. या फिर सीधे बोलो fog इक्वल टू आइडेंटिटी r के ऊपर है. गॉफ निकालो. नाउ लेट अस फाइंड गॉफ x. तो व्हाट इज गॉफ x? g of fx. g as it is. What is fx? fx is 4x plus 3. Now this is ga. So this is ga is a minus 3 by 4. अगर if this is a, so this will be a minus 3 by 4. And now what is a? A is this. What is a? A is this. Sorry. Ga will be a minus 3 by 4. Ga. This is a. So this will be 4x plus 3. A की वैल्यू minus 3 by 4. ये सब बताया सर समझाने के लिए. 3 and 3 cancelled out. 4 and 4 आंसर क्या आ गया? x. So गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी r. गॉफ भी क्या है? आइडेंटिटी. फॉग भी क्या आइडेंटिटी? गॉफ भी क्या आइडेंटिटी? दैट मीन मैंने क्या प्रूव कर दिया? इंप्लाइज फॉग एंड गॉफ आर आइडेंटिटी फंक्शंस. देयरफॉर इसका मतलब ये जो g मैंने लिखा है, देयरफॉर g f इनवर्स. g क्या है? f इनवर्स. तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो f इनवर्स. अगर इसका वेरिएबल वही वाली बात, प्रेजेंटेशन वाली बात, अगर वहां पर f इनवर्स x पूछ रहा है तो x minus 3 by 4 कर देना, बस यहां पर लिख देना f इनवर्स के. देयरफॉर f इनवर्स इक्वल टू g, और इस g को दोबारा से लिख देना. g क्या है? ये है gy इक्वल टू y minus 3 by 4, या फिर gx इक्वल टू x minus 3 by 4. यही f इनवर्स है. ये जो हमने निकाला, पहले मैंने इसको इनवर्स नहीं बोला, पहले मैंने एक फंक्शन बनाया. जब फॉग एंड गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दिया उसके बाद आई कैन से दैट ये जो g है ये इस फंक्शन का इनवर्स. So I have described both the methods for one question for finding the inverse of a function. We will do some more questions, more 4-5 questions are there which we have to do, very important questions in the next video. Thank you.